यस मानसी, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। ज्वाइन करने के लिए लगाओ सभी को। थर्ड ईयर see this print? Yes, everyone? Yes. Okay, what we have studied Yes, in the sir. last lecture? Yes, everyone, what we have studied in the last lecture? Yes, anyone? प्रिंस, ऋतिक, मानसी, अंजलि, सिर्फ इतने ही लोग ज्वाइन हुए, बाकी लोग? ज्वाइन होने के लिए बोलिए। ऋतिक, एम आई ऑडिबल? प्रिंस, एम आई ऑडिबल? So guys, yes sir, you are audible. Okay, why are not joined to other students? Any problem? No, sir. Okay, shall we start? Yes. Yes, sir. ओके, तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था बकेट सॉर्ट पढ़ा था, ठीक है। बकेट सॉर्ट क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो व्हाट इज द बकेट सॉर्ट? बकेट सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट डिवाइड the unsorted array element into several groups called the buckets. Each bucket is then sorted by using any of the suitable sorting algorithm or recursively applying the same bucket algorithm. Finally, the sorted bucket are combined to form a final sorted array. तो क्या गिवन दिया होता है हमारे इसमें बकेट सॉर्ट में कि हमको कुछ एरे एलिमेंट्स दिए होते हैं और उसको हमको क्या करना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है यूजिंग द बकेट। हमको बकेट्स कंसिडर करके उसको सॉर्ट करना पड़ता है। सेम algorithms depends on the buckets is the radix sorts। तो radix sort भी वैसा ही algorithm है जैसा bucket sort है, लेकिन it's a different। okay, radix sort, basically radix sort is one of the sorting algorithm used to sort a list of integer number in order। in radix sort algorithm, a list of integer number will be sorted based on the digits of individual numbers। for example, if the largest number is a 3-digit number, then that list is sorted with 3 passes। okay, got it this point? If number largest number digit is 3 digits, okay, like 301, okay, so how many passes are sorted in radix sort? There are 3 passes using the there are 3 passes, and digit number is largest is
4021, like 4021 is a 4-digit number, 4-digit largest number. So how many passes are using radix sort? There are the 4 passes are using. Okay, once again, sorting is performed from least significant digit to the most significant digit. Radix sorting is performed from least significant digit to most significant digit. तो छोटे से लेकर के बड़े डिजिट तक वो क्या करता है, सॉर्ट करता है. वैसे तो सभी जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम लोगों ने देखे वो सभी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट ही सॉल्व करते हैं. ठीक है, देन रेडिक्स सॉर्ट इज अ काउंटिंग सॉर्ट. सो आल्सो रेडिक्स सॉर्ट इज अ काउंटिंग सॉर्ट. गॉट इट दिस पॉइंट? ये समझा आप लोगों को कि किस तरीके से रेडिक्स सॉर्ट काम करता है? तो इसका हम लोग एक क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे. टेक वन एग्जांपल. दिस इज द array element, this is the array element. Okay, and this is the array index. What is the array index? Array indexing is the same as accessing an array element. You can access an array that the first element has index 0 and second has index 1, etc. So starting is index is basically 0, then 1, then 2, then 3. So then using the array element, so first of all use the array element is index 0 element, then index 1 element, then index 2 element. Okay, so first of all in the radix sort, using the least significant digit, least significant digits means unit digits, least significant digits means unit digits. So like this, unit digit is 1, unit digit is 9, unit digit is 0 in this element. Okay, this is the unit digits. Okay, then this is the 10 digit, then 1, then again this is the 100 digits. Unit 10 100. Okay, got it this point? Yes, ये समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें से? यस एनीवन, लार्जेस्ट एलिमेंट कितने डिजिट का है एज पर द एरे एलिमेंट? यस, आकांक्षा, माहेश्वरी, मानसी? यस एनीवन? Sir, 3 digits, sir. हाँ, 3 digits. Largest element is 3 digits. So first of all set all digits are, all elements are 3 digits. Okay, like that. 0 1 5, 0 0 1, 3 2 1, 0 1 0, 8 0 2, 0 0 2, 1 2 3, 0 9 0, 1 0 9 and 0 1 1. Okay, all digits are set to 3 digits, all digits are set to 3 largest number. ठीक है, then again first of all using the pass one, using the unit digit, using the unit digit, unit digit is I am indicating the red color. यूनिट डिजिट्स को मैं रेड कलर से इंडिकेट कर देता हूं आप लोगों को समझने के लिए. इट्स अ वेरी इजी एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम. ओके, ऑल आर सेट अ रेड कलर. मैंने सभी को सेट कलर में रेड कलर में सेट किया है, ओनली यूनिट डिजिट्स. So using the first array index element, first array index element is 0th index element. So I am inserting the bucket. Every element I am inserting the bucket. कितने buckets मैंने लिए हैं यहाँ पे? 0 to 9. टोटल कितने डिजिट्स होते हैं हमारे डेसिमल के? 0 to 9 बराबर है. तो मुझे कितने बकेट को कंसिडर करना है? 10 buckets कंसिडर करना है. These are the buckets list. Okay,
तो यहाँ पर इस बकेट में मुझे इंसर्ट करना है, तो कौन सी वैल्यू कौन से बकेट में जाएंगी ये डिपेंड करता है, बराबर है। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ, एरे इंडेक्स जीरोथ एलिमेंट। हाँ ठीक है, तो जीरोथ एलिमेंट में कौन सा इंडेक्स है, कौन सी वैल्यू है मेरी 015। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 015 इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिफ्थ बकेट में उसको क्यों इंसर्ट किया, वाई आर पुटिंग द फिफ्थ बकेट, यस बिकॉज this value unit digit is 5, this value unit digit is 5। again second index of the array कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, 001 एलिमेंट है, यानी कि मेरा एलिमेंट की वैल्यू क्या है 001। सो इसको मैं कहां पर बकेट को कौन से बकेट में इंसर्ट करूंगा 001। आप लोगों को ट्राई करना है, मेरे साथ बोलना है कहाँ कहाँ मैं इंसर्ट करूंगा। देन थर्ड डिजिट में कहाँ पर इंसर्ट करूं, यस एनीवन, थर्ड डिजिट देखो यहाँ पर 321 बराबर है। थर्ड डिजिट में कहां पर इंसर्ट करने वाला हूं, यस विच बकेट इंसर्टिंग दिस 0, ओके 010। अगेन फोर्थ डिजिट, फोर्थ वैल्यू 2, ओके गुड 802। देन अगेन 002, then again 3 third 3, 1 2 3, again 0 0 0 0 9 0, good, again 9 9 number 109, again last digit is remaining 1 1 0 1 1, okay good. So all are inserting in the buckets, all array elements are inserting in bucket or put in the bucket. So pass one is complete, not completely, हाँ okay, pass one is not completely। अभी हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करेंगे, राइट ऑन द सिक्वेंशियली, राइट ऑन द सिक्वेंशियली। हम इसको क्या करेंगे, फिर से एरे के अंदर पुटअप कर देंगे, बट सिक्वेंशियली पुटअप करेंगे। तो कैसे सिक्वेंशियली पुटअप करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोथ बकेट एलिमेंट पुट, देन वंथ बकेट एलिमेंट पुट, देन सेकंड बकेट एलिमेंट पुट as soon as, okay। So first of all I consider zeroth bucket 010, then again 090, then again 001, then again 321, again 011, 001 good 802, again 002, again 123, again 015, again last digit is 109। I am putting the sequentially, okay, in the array element, new array element। तो हमारा न्यू array element क्या बना अभी यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये है मेरा न्यू array element, ओके। यहाँ पे मेरा नया एलिमेंट बना क्या अभी मेरा यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज पास टू। तो पास वन इज कंप्लीटेड इन द रेडिक्स सॉर्ट, पास वन कंप्लीट हो गया है। हमको कितने पासेस में काम करना है, 3 पासेस। व्हाई, बिकॉज आई एम हैविंग अ 3 लार्जेस्ट डिजिट, ओके। सो अगेन रिपीट दिस नंबर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास में न्यू एरे एलिमेंट मिला है हमको यहाँ पर, बराबर है। न्यू एरे एलिमेंट हमारा ये है। अगेन मैं क्या करूंगा, इसको अभी फिर से सॉर्ट करूंगा। अब इसको जब मैं सॉर्ट करूंगा तो मैं कौन से डिजिट्स को यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर इंडिकेट किया है 10 डिजिट्स, यहाँ पे इंडिकेट किया है 10 डिजिट्स। मैं इसको रेड कलर से इंडिकेट कर देता हूँ 10 डिजिट्स को, यानी कि सेकंड डिजिट को, ठीक है। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का सेकंड जो डिजिट है उसको हम कंसिडर करेंगे। गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन, समझ में आ रहा है, यस yes sir बॉयज, बॉयज की आवाज नहीं आ रही है, यस। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से सॉर्ट करेंगे यूजिंग द पास टू, यूजिंग द
पास टू के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। तो इस समय पर अब मैं सॉर्टिंग कर रहा हूं, तो मेरा एलिमेंट जीरोथ एलिमेंट जो है, यानी कि इंडेक्स ऑफ द एरे, जीरोथ इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो कौन सी बकेट में जा करके पुट हो जाएगा? यस, बताओ। 0 1 0 फर्स्ट 1 एलिमेंट, वन एलिमेंट में, गुड। यानी कि यहाँ पर 0 1 0 मैं यहाँ पर लिखूंगा। देन अगेन 0 9 0, 9 9 9 0 9 0, अगेन 0 0 1, 0 0 0 1। देखो यहाँ पर 0 0 1, ओके गुड, 0 0 1। अगेन थर्ड नंबर 2 2, गुड, 3 2 1। अगेन फोर्थ डिजिट इज 1 1, गुड। आप ही सॉल्व कर रहे हो, गुड। देन अगेन 0 0 8 0 2, गुड। अगेन 0 0 0 2, ओके गुड। अगेन 2 1 2 3, this element are put in the second bucket, 1 2 3, good. Again 8 number 1 element 1 1 0 1 5, and last ninth element is 0 0 1 0 9, okay good। तो यहाँ पर हमारा पास टू क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब पास टू को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगेन नोट द एलिमेंट ऑफ बकेट वैल्यू पुट इन द सिक्वेंशियली एंड कंप्लीट द पास टू। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो बकेट्स है उसके जो भी वैल्यूज है जो मैंने पुटअप किए हैं बकेट के अंदर, उसको क्या करूंगा मैं, वन बाय वन उस बकेट को, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उसको मैं क्या करूंगा, सिक्वेंशियली राइट डाउन करूंगा एरे के अंदर। ठीक है, तो 0 0 1, then again 8 0 2, then again 0 0 2, then again 1 0 9, then again 0 1 0, then again 0 1 1, again 0 1 5, 3 2 1, 1 2 3, and 0 9 0। ठीक है, all element are set in the new index array, new array element, सॉरी न्यू array element। तो अभी मेरी न्यू array element क्या बनी मेरी यहाँ पर, हाँ, न्यू array element मेरा यहाँ पर क्या बना है, ये वाला वैल्यू बना है। ठीक है, तो अभी भी मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से मेरा सॉर्टिंग हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो अभी भी मुझे क्या करना है, अगेन यूजिंग द पास थ्री, अगेन यूजिंग द पास थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यू को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा था यहाँ पर। देखो यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कौन से डिजिट के हिसाब से सॉर्ट करूंगा एरे इंडेक्स को, सॉरी एरे थर्ड के एलिमेंट्स को, 100 डिजिट। थर्ड 100 डिजिट मतलब थर्ड डिजिट ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का जीरो डिजिट, देन सेकंड डिजिट, देन थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट इज द 100 डिजिट। ओके, लाइक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोल सकते हैं इसको हम, ओके, या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं अभी कैसे सॉर्टिंग करूंगा, ठीक है, सेम प्रोसीजर ऑफ द पास टू प्रोसीजर यूजिंग द पास थ्री प्रोसीजर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक इंडेक्स 0 वैल्यू, सो 0 0 1, देन अगेन 8 सेकेंड एलिमेंट कहाँ पे पुट करेंगे, 8 8 0 2, थर्ड एलिमेंट पुट ऑन 0 0 0 0 0 2, then again 1 1 0 9, then again 0 0 1 0। बॉयज, बॉयज की आवाज नहीं आ रही है। 0 देन 1 अगेन 0 1 0 1 1 हो 5 गया, 5। ये वाला एलिमेंट 3 3 3 2 1, अगेन 1 1 1 2 3, ओके गुड। वन सेकंड,
1 2 3. Okay, and last element is put on which bucket? 0. 0th bucket. 0 9 0. Okay, good. So all our array element are sorted and put on the buckets Okay, then last one is क्या करेंगे हम? एलिमेंट ऑफ बकेट वैल्यू पुट इन सिक्वेंशियली एंड कंप्लीट द पास 3. तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको सिक्वेंशियली पुटअप कर दूंगा. अब मैं पुटअप कैसे करूंगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं 0th बकेट के एलिमेंट्स लूंगा. 0th बकेट के एलिमेंट्स कौन से हैं मेरे? 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 5 0 9 0. Okay, good. 1 0 9. बताओ 1 2 3. Last element is 3 2 1 and last element is 8 0 2. So क्या यहाँ पर सॉर्टेड हो गए? यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स देखो, यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 1. देन उसके बाद में 2, फिर 10, फिर 11, देन 15, देन 19, 109, 123, 321 and 802 numbers. So this is the largest number and this is the very small number of the all array element. Got it this point everyone? समझा बेटा ये आपको? Yes, सभी sir. को? Yes, Yes, boys. sir. Yes, sir. चैतन्य, पूजा, Yes, sir. ऋतिक, प्रिंस, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गॉट इट दिस पॉइंट. हाँ, तो ये जो अल्गोरिदम है, आप लोगों को मैंने जितने भी सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स पढ़ा है वो सबकी पीपीटी में आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ, और ऑलरेडी कुछ पीपीटी शेयर किया हूँ. अभी ये वाला भी पीपीटी में शेयर कर दूंगा. लेकिन ये एग्जामिनेशन में 6 to 7 मार्क के लिए पूछा जाता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड यूनिट के ये जो अल्गोरिदम्स है, ये सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स है, 6 to 7 मार्क के लिए एनी हाउ पूछते ही है. कोई तो भी एक या दो अल्गोरिदम आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका जो भी थ्योरी है, क्योंकि वहां पर कभी कभी एलिमेंट्स दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो हमको कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर करके हमको क्या करना है, उसको सॉलिड करना है. ठीक है, हाँ. सो टेक द वन एग्जाम्पल अगेन. so दिस इज द न्यू एरे वैल्यू. सो इसको अभी आप सॉल्व करेंगे सभी लोग मिल करके. ठीक है, सभी की आवाज आनी चाहिए और रॉन्ग नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एरे एंड एलिमेंट ऑफ द एरे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं पास 1 के लिए प्रोसीजर करूंगा. इसको सॉर्टिंग करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल डिजिट्स आर सेट इन अ 3 numbers. ऑल डिजिट्स आर सेट इन अ 3 numbers. लाइक दैट 3 is a single number, 8 is also single number, 80 is a 2 number. तो इसको सेट कैसे करना है, 3 नंबर में सेट करना है. वाई? बिकॉज मैक्सिमम एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज 3 digits. मैक्सिमम वैल्यू इज 3 digits. तो मैं सबसे पहले इसको सेट करता हूँ 018, देन 003. ठीक है, देन 421. इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. अगर किसी ने ऐसे से लिख दिया तो 300 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, बताओ? यस, 3 को मैंने 300 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, 300 हो जाएगा. बट हमको क्या करना है, उसके बिफोर लगाना है. ठीक है, हाँ. देन अगेन 015, देन अगेन 904, अगेन 008, देन अगेन 225, अगेन 080, यस 209 and 017. So all digits are set in the 3-digit number. Okay, first of all using the pass 1. तो सबसे पहले पास 1 के लिए क्या करेंगे हम, कौन से डिजिट को यूज करने वाले हैं, बस बताइए. एनीवन? यस, बताइए जल्दी से, कौन से डिजिट का मैं यूज करूंगा सॉर्टिंग के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल Last 5 digit. हाँ, जिसको हम कौन सा डिजिट बोलते हैं, Unit digit. यूनिट डिजिट. तो मैं यूजिंग द यूनिट डिजिट, देन पुट ऑन द 0 to 9th bucket, पुट ऑन द 0 to 9th bucket. मैं उसको
उसके बकेट के हिसाब से उसमें पुट करूंगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 018 एलिमेंट, यानी कि 18 लिखा हुआ है, तो मैं उसको कहां पर पुट करूंगा? यस 8 8 में पुट करूंगा। तो 8 में जाकर के मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पर 018 यहाँ लिख दूंगा। देन अगेन सेकंड एलिमेंट इज 003, कहाँ पुट करूंगा मैं उसको? 003 में पुट करूंगा। देन सेकंड एलिमेंट इज 421, सेकंड एलिमेंट इज एज पर द इंडेक्स। यस कहाँ पुट करेंगे हम इसको? 1 1 में 421। अगेन 5 5 5 015, अगेन this 4 digit 4 9904, हाँ अगेन दिस डिजिट 8 8 में जाकर के सेव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 008। अगेन 225 नंबर 5 5 में जाकर के सेव करना है 225। अगेन दिस डिजिट सेवंथ डिजिट 0 080 and 8 element digits 9 9209 and last number 7 of index 7 071. Okay, all digits are all array elements or put on the buckets, put on the buckets. Okay, then write on the all elements in sequentially order from bucket, sequentially order from bucket। तो हम हर बकेट से क्या करेंगे, अभी इसको सिक्वेंशियली लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले 0th बकेट, देन 1th बकेट, देन 2th बकेट, देन 3rd बकेट। तो इस तरीके से मैं 0 to 9th बकेट का जितना भी एलिमेंट है उसको क्या करूंगा, मैं सॉर्टेड फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन सिक्वेंशियली। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 080, देन 421, देन सेकंड इसमें कुछ है क्या? नहीं है। थर्ड बकेट में क्या है? 003, देन फोर्थ बकेट में क्या है? 904, देन 015, देन 225, देन 017, देन अगेन 018, देन अगेन 008, देन अगेन लास्ट नंबर इज 209th number. Okay, so pass 1 is completed, so pass 1 is completed. Then again using the न्यू एरे वैल्यू, अभी ये जो नई वाली वैल्यू है मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर कॉपी कर देता हूं। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। हाँ, अब न्यू एरे एलिमेंट कौन से बन गए? अभी मेरे ये वाले एरे एलिमेंट बन गए। अब मैं क्या करूंगा, यह सभी जन बताएंगे। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड पास में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं, अब मुझे ये पूरे एरेथ एलिमेंट को फिर से बकेट में इंसर्ट करना है। पुट ऑन द बकेट 0 to 9। मैं कैसे करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट को मैं कहाँ इंसर्ट करूंगा, कौन सी बकेट में इंसर्ट करूंगा? यस 8 बकेट में। वाई बोलो? यस 10 आंसर। डिजिट में लेना, हाँ, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारे 10 10th, डिजिट्स। हाँ 10th डिजिट मतलब सेकंड डिजिट का यूज करेंगे। यानी कि फर्स्ट पास में क्या किया हमने, यूनिट डिजिट का यूज किया था, और अभी सेकंड पास में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड 10 पास में प्लस डिजिट। 10th डिजिट का यूज करेंगे। 10th डिजिट मतलब यूनिट 10 100। तो यहाँ पर 080 एलिमेंट कहाँ जाकर से हो जाएगा, यहाँ पे जाके से हो जाएगा 080 बकेट में हमने इंसर्ट कर दिया। देन सेकंड वैल्यू 421 वैल्यू 2 2 में 421 इजी है। देन सेकंड वैल्यू इज 0 0। ओके, 003, अगेन 0 0 904, अगेन 1 015, गुड, अगेन 2 2
225 अगेन, 1 यानी कि 017 अगेन, 1 हाँ हाँ, अगेन 0 0 008 ओके, अगेन 0 अगेन 0, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या किए, ऑल एरे एलिमेंट्स पुट ऑन द बकेट्स, पुट ऑन द बकेट्स। ओके, अब हमको क्या करना है, यस एनीवन, अभी क्या करना है यहाँ पर, बोलो जल्दी से, अभी क्या करना है, इनिशियली लिखना है सर। क्या करना है, कैसे लिखेंगे हम बेटा, बोलो एक बार। 0 सबसे पहले कौन से बकेट के एलिमेंट में इंसर्ट करूंगा एरे में, न्यू एरे एलिमेंट मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मैं कौन से बकेट के एलिमेंट्स लूंगा, 0th bucket 0 जीरोथ बकेट, यानी कि सबसे पहले क्या करना है बेटा, अभी ये जीरोथ बकेट के जो एलिमेंट्स है उसको सिक्वेंशियली लिखना है, वहां पर कोई भी सॉर्टिंग नहीं करना है। जबकि बकेट सॉर्ट में क्या होता था, बकेट सॉर्ट जो एल्गोरिदम हमने पढ़ा था इसके पहले लास्ट क्लास में, वो बकेट सॉर्ट क्या करता है, वो पास वन पास टू पास थ्री के हिसाब से नहीं काम करता है, वो उसमें भी पासेस होते हैं, लेकिन वो पास टू में क्या करता है कि जीरोथ बकेट के जो एलिमेंट है उसको सॉर्ट आउट करता है। ओके, जीरोथ एलिमेंट के बकेट के अंदर को भी सॉर्ट आउट करता है, लेकिन रेडिक्स सॉर्ट क्या करता है, वो जीरोथ एलिमेंट के बकेट के अंदर के डेटा को सॉर्ट आउट नहीं करता है, वो सिक्वेंशियली लिखते हुए जाता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है रेडिक्स सॉर्ट और बकेट सॉर्ट में। तो अभी मैं क्या करूंगा, 003 को लिखूंगा सबसे पहले एलिमेंट, देन 904 अगेन, 008 अगेन, 209, हाँ गुड, 015 017 018, देन 421, देन 225 और लास्ट डिजिट इज 080। ठीक है, हाँ, so that condition pass to is completed, that condition pass to is completed, so again all array element, again all new array element, अभी ये जो new array element है इसको मुझे क्या करना है, अगेन सॉर्ट आउट करना है यूजिंग द 100 डिजिट, यूजिंग द 100 डिजिट। ओके, सो अगेन सॉर्ट आउट द पास थ्री, कॉपी दिस कंटेंट, अभी हमारी न्यू एरे एलिमेंट्स कौन से है बेटा, यहाँ पर ये वाले हैं, तो यहाँ पर मैं सॉर्ट आउट करूंगा यूजिंग द पास थ्री। तो मैं क्या करूंगा, कौन सी वैल्यू को कंसिडर करूंगा यहाँ पर, जिसको मैंने रेड से इंडिकेट किया है, वो वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सॉर्ट आउट करूंगा उसको कंसिडर करके, यानी कि मैं 100 डिजिट वैल्यू को कंसिडर करूंगा। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वैल्यू इज सॉर्टेड और पुट ऑन द विच बकेट, टेल मी, 0 जीरो बकेट, ओके 003। ठीक है, हाँ, अगेन नेक्स्ट एलिमेंट इज पुट ऑन द विच बकेट, 9 904, यस, फटाफट बताओ, 0 0 008, हाँ, नेक्स्ट नंबर इज 209 2 209, ओके, हाँ, अगेन 0 0 015 अगेन, 0 ओके, अगेन 0 017 अगेन, 0 0 018 अगेन, 4 4 4 421 अगेन, 2 2 2 225 अगेन, 0 0 again 0, okay, 080, okay, all element are finished, okay, so all element are put on the bucket, then pass 3 is not completed, अभी pass 3 को complete करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, yes, all buckets, सीक्वेंशियल हाँ, ऑल बकेट्स के अंदर का जो भी एलिमेंट्स है उसको हम क्या करेंगे, न्यू एलिमेंट, न्यू एरे एलिमेंट के लिए उसको सिक्वेंशियली लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 003, देन अगेन 008 015 017 018 080 209
225 421 and last digit is 904. So pass 3 is completed. Okay, and write down a new array element is sequentially least significant to most significant and sorting the smallest number to largest number. So smallest element क्या है हमारा यहाँ पर 003, देन उससे बिगर कौन सा है 008, उससे बिगर 015 यानी कि 15, 17, 18, 80, 209, 225, 421 and last biggest number is 904 digits. So ये सभी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया बेटा? यस? Yes. किसी को ऐसा है नहीं समझ में आया कि रेडिक्स सॉर्ट फिर से काम कैसे करता है, पास 1, पास 2, पास 3 करते समय पर कैसे वर्किंग करता है? समझ में आया आज का एग्जांपल? हमने 2 एग्जांपल्स आज हमने स्टडी किए. Yes. इसके बाद में नेक्स्ट एड्रेसिंग सॉर्ट एल्गोरिदम भी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और जितने भी एल्गोरिदम्स मैंने आप लोगों को सॉर्टिंग के बताए उसको आपको एटलीस्ट 2 और 3 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी यूजिंग द न्यू एग्जांपल. हाँ, आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन सेट्स दिए हैं या यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने डाउनलोड किए हैं वो एक बार देखिए. उसमें जो जो एग्जांपल्स आए हैं वो एग्जांपल्स को आपको क्या करना है, घर में उसको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क. ओके, आप करोगे सभी लोग ये सब सॉल्व करके देखोगे? Yes, sir. Yes. Okay, good. Yes, sir. So what is the time complexity of the radix sort? So order of d multiple of n plus b. So what is the d? D is a number of digit like 1 0 3 4, that is the 4 digits. यानी कि अगर मेरे array के अंदर में 3 digits नंबर है, biggest number is 3 digits और biggest number is 5 digits, biggest number is 6 digit, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके वजह से बढ़ेंगी? क्योंकि हमारे बिगेस्ट नंबर जितने बड़े होंगे उतना ही हमारा क्या पासेस भी बढ़ता है. क्योंकि अगर 5 डिजिट नंबर अगर हमारे अरे एलिमेंट में है तो हमारे पासेस कितने होंगे? 5th क्लासेस तक हम लोग जाएंगे, बराबर है. अगर 3 डिजिट्स लॉन्गेस्ट 3 डिजिट्स है तो हम लोग कितने पास कंप्लीट करेंगे? 3 पासेस को कंप्लीट करेंगे. एंड व्हाट इज द एन? एन इज अ नंबर ऑफ एरे डिजिट. कितने डिजिट्स हम लोगों ने लिए थे यहाँ पर? देखो हमारे एरे इंडेक्स में कितने एलिमेंट्स है, यानी हमारे एरे इंडेक्सिंग कितनी है? 9 थे, यानी कि हमारे टोटल डिजिट्स कितने होंगे? एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10 हो गई, लाइक 10. ठीक है, तो हमारे 10 नंबर्स हो गए. देन बी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? नंबर ऑफ बकेट. हमने कितने बकेट्स यूज किए हैं? मैक्सिमम हम लोग कितने बकेट्स यूज करते हैं? 9 बकेट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता नहीं होता है कि कौन से एलिमेंट कौन से बकेट में जाएंगे. जैसे कि 5th एलिमेंट इज एम्प्टी, 6th एलिमेंट इज एम्प्टी, यहाँ पर वो एम्प्टी है. लेकिन 0th बकेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है. ठीक है, तो एज पर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज काउंट. ओके, मेजर बिग ओ और ऑर्डर ऑफ डी मल्टीपल एन प्लस बी. गॉट इट दिस पॉइंट? ये समझा सभी को कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है? सभी के डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है. ठीक है, यस, एनी क्वेश्चन बेटा? यस, प्लीज गिव द प्रेजेंटी. प्रियंका, आकांक्षा, Yes, sir. अंजलि, अंशुल, चैतन्य, Present, sir. Yes, श्रुतिका, माहेश्वरी, मानसी, Present, sir. प्रतीक, प्रिंस, ऋतिक. Present, sir. ओके, ऑल आर प्रेजेंट. सभी को ये एग्जाम्पल्स क्या करने हैं? एज अ होमवर्क इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, और ये जो यूनिट के जो क्वेश्चंस है वो 6 to 7 मार्क के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम. और ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज हमारा जो असेंबलर होता है, असेंबलर जब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो वो क्या करता है? टेबल्स जनरेट करता है. लिटरल टेबल, सिंबल टेबल, मशीन टेबल एंड सूडो टेबल. तो ये टेबल्स को हम लोगों को सॉर्ट करना पड़ता है, उसके लिए ही ये सभी एल्गोरिदम्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट एल्गोरिदम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो वी विल स्टॉप हियर. यस, एनी क्वेश्चन? आस्क मी. Bye. Good night. ओके.